at that very sensitive age of 17 and 18, you're trying to copy somebody else just because they are choosing a certain college. What kind of things can help a student at this very sensitive juncture? To be very honest, there is no definite answer to it. Take a decision by yourself. Because they've spent so much once, now the entire guilt trip that comes when you know that चलो maximum I'll earn is 80,000 1 lakh rupees a month, मैं कितने सालों के बाद जाके वो पैसा recover करूँ? More than that, if somebody gets a wrong job, Say for example, my parents can afford it, so I can, and my marks are good enough to get a college with 2 to 1.5 lakh rupees and a college with 10 lakh rupees. Now, what are the deciding factors on my table to decide whether I should go to the 10 lakh college or the 2 lakh college? no, Okay. it is not like that. So let's come to this year, 2024. It's been an entire, like, NEET has been a joke. So what's the current situation and what's your take on it? NEET is not a joke. I would rather say कि ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम है, कभी कहीं थोड़ा मिसअप, गलती सबसे होती है. To err is to human, right? There are the number of students is very high. Means this time most there has been a tremendous increase in the number of students who have appeared for NEET, and maximum number of students as per the last year they have qualified this year. So yes, the competition is going to be relatively very high, but again we have to see the motion of the students as well, because there has been a delay in the counseling process. So whenever there is a delay, the emotion of the student gets, the morale is basically lowered. And then they can think about the other courses and all. The students go here, they take up this course, that course. They go abroad. Yes, abroad also they go. Many students go abroad. Many students go to study the same subjects. Many students go to do their other courses as well. So we cannot say, but yes, the glamour of these two courses will never come down, because these two are the most respectable and dignified profession in the entire world. Right. तो अभी let's talk about the long term vision. मतलब जब हम 17-18 years के होते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम next 10 years में क्या करेंगे, 20 years में क्या करेंगे. But मुझे ये realize हुआ कि ये सारी चीज़ें at the end समझनी पड़ती है. किसी को option नहीं दिया जाता है कि you can get away with it. So my personal experience was that जब हमने BDS किया और हम मार्केट में गए, इन द सेंस हम एक रियल वर्ल्ड में गए जहाँ पे हम प्रोटेक्टेड नहीं थे, द एनवायरनमेंट चेंज्ड एंड सडनली वी वर पेड 4,000-5,000 रुपीज एंड दैट वाज वेरी डीमोरलाइजिंग, क्योंकि हमें मणिपाल में तो स्टाइपेंड ही 20,000 मिलती थी और हम बाहर गए और हमें लोगों ने बोला कि या तो फ्री में काम करो या तो 4-5 हज़ार के स्टाइपेंड पे काम करो. तो एट दैट पॉइंट इट हिट मी कि हमने इतने कोर्सेज किए, हमने इतने पैसे डाले, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है. इट हिट मी, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे डेंटिस्ट जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ऐसा हिला डुला था कि अब ये है, मतलब कितने नेगेटिविटी है अराउंड डेंटिस्ट्री. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एंड व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अ डेंटल करियर? देखो, पहले तो आप दूसरा डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो आप सीखने जा रहे हो. ठीक है, उस डेंटिस्ट को भी पता है कि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको छोड़ोगे. तो वो आपको क्यों हाई पे देगा? करेक्ट. प्लस उसको एक कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपके ऊपर कि चलो आप जितना भी अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हो कि आप एक ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाओगे, तो उसका भी एक क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक. करेक्ट. दूसरा, getting into job after dentistry is the worst decision one student can take in his life. Okay.
जॉब में आप 50,000 मिल जाएगा, लाख मिल जाएगा, 1.5 लाख मिल जाएगा. जस्ट इमेजिन, यहाँ यू आर गेटिंग ए चांस टू बी इंडिपेंडेंट. आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो. 1.5 लाख मतलब कितना? 10 RCT विथ क्राउन ऑन ए लोअर साइड, या 5 इम्प्लांट. बट क्लिनिक के कॉस्ट्स होते हैं, क्लिनिक को रन करने के मार्केटिंग चार्जेस होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे देखो वो थोड़ा तो ऐड करो आप. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक. आप पहला दिन ही स्टार्ट करते हैं, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नहीं आज हम स्टार्ट किए, टुडे इज द ओपनिंग ऑफ माय क्लिनिक एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू 10 इम्प्लांट, 10 RCT, ब्ला ब्ला ब्ला. नहीं, पहले तो आपको अपना रनिंग कॉस्ट निकालना है. रनिंग कॉस्ट तो आराम से निकल, रनिंग कॉस्ट आपका चलो 1 लाख का भी रेंट है, 2 लाख का भी रेंट है, तो भी आपका 10 RCT 15 ये सब में निकल रहा है ना. उससे कम क्या करोगे? उससे कम क्या पेशेंट आप एक्सपेक्ट करते हो? ग्रोथ विल कम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको पहली बात तो खुद का सेटअप होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप ये करियर में नहीं जा सकते हो. एंड दैट इज दैट द सेम विद MBBS आल्सो? नहीं, MBBS में फर्स्टली if you are just an MBBS, the life is little bit tough because you have to depend upon the hospital to hire you. और इंडिविजुअल प्रैक्टिस करोगे तो आज के दिन में आप कोई गांव में भी जाओगे ना, उनको भी मालूम है कि हमको मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना है. तो जब तक आप